Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. This is Teddy Gurdesi here, and today we will be doing the discussion for the NUMS 2025 exam. So let's start with the first question. It is Cliff had been only a few months in the army when announced that peace had been concluded between Great Britain and France. The sentence contains error of. अब आपने errors बताने के sentence के अंदर errors हैं क्या? ठीक है? Clive had been only a few months in the army when announced that peace had been concluded between Great Britain and France. This is the sentence. यहाँ पे there is no need of comma. ठीक है? Clive had been only a few months in the army के बाद comma लगाने की जरूरत नहीं है. Before when, ठीक है? When announced that peace had been concluded, और बीच में और पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कॉमा आ सके, सो कॉमा का इशू है नहीं. सेंटेंस जहाँ कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप देखो ऑलरेडी लगा हुआ है फ्रांस के बाद, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन का एफ और बी कैपिटल होना चाहिए था, ये कैपिटल नहीं है. सो यस, द एरर इज बेसिकली इन द कैपिटलाइजेशन. डेल्टा इसमें आपके पास क्या है? राइट आंसर. द राइट आंसर इज कैपिटलाइजेशन. Next, देखो, according to the scientists, the sun is dash, and we can find the early discoveries made by scientists in black and white on dash. Choose correctly, spell homophones to complete the sentence. अब यहाँ पे the word in itself is stationary, ठीक है? और आपने यहाँ पे क्या करना है? We are talking about homophones here. यानी the words that have the same sound with different meanings और spellings भी उसके आपके पास different आ रही है. So stationary, जब हम ARY वाले stationary की बात करें, that means something that's still, that is not moving, that is stationary, ठीक है? जिस तरह sun है, that is not moving, so that is stationary in nature. और जब हम ERY वाले stationary की बात करें, that is basically जो stationary आप लोग purchase करते हो जाके, ठीक है? So यहाँ पे the right answer here is beta. आपके पास the first stationary that we're associating with sun, that does mean, that doesn't imply कि आपके पास वो चीज रुकी हुई है, वो move नहीं करी. Whereas the other stationary is basically used in terms of the stuff that you need in order to write. Yeah. Next is the correct, choose the correct preposition. 1 hour dash glorious life is worth an age without a name. So 1 hour of glorious life is worth an age without a name. Of is basically beta, the right answer. Next is which of the following verb takes the preposition from with it. ठीक है, so आपने देखना है किस verb के साथ जो preposition from आएगा वो use होता है. Abstain from होता है, accused of होता है generally, ignorant of होगा, desirous के साथ from नहीं लगता. So the right answer is here. The right answer here is abstain. So abstain from होता है. Alpha is the right answer. Identify the sentence with the correct structure. We noticed the boy, comma, walking down the street. इसमें comma लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हो. We noticed the boy walking down the street. Full stop. That's it. The sentence is right. ठीक है. Then we noticed the boy walks, we noticed, comma, the boy walks down the, comma, street. यहाँ पे कितने गलत है? We noticed के बाद भी लगाने की जरूरत नहीं है, comma. We noticed the boy walks down the street, full stop होता. Street से पहले भी comma लगाने की जरूरत नहीं है. We noticed that the boy was walking down the street. तो notice के बाद comma की कोई जरूरत नहीं है. We noticed the boy who was walking. अब देखो, अगर आप we noticed the boy walking down the street ही करते हो, that was grammatically wrong. लेकिन यहाँ पे आप who was walking down the street कर रहे हो, यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट और वर्ब है, और यहाँ पे भी आपके पास एक सब्जेक्ट और वर्ब है, और आप इसको एक कॉमा से सेपरेट कर रहे हो. सो दैट डज मेक सेंस. दैट इज द राइट वन. वी नोटिस द बॉय, कॉमा, हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. ठीक है. आई विल बी डूइंग द चैट बॉक्स साइड बाय साइड. सो किसी के कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, so you guys are more than welcome to mention that in the chat box. ठीक है. There is this question, ma'am, it's comma and capitalization. The comma would be after Britain. So most probably we are talking about the first question here. देखो, Britain के बाद comma नहीं लगेगा. अब मैं आपको बताती हूँ. आपके पास and दो तरीकों से यूज होता है. एक तो आप and यूज करते हो, let's say मैं कहूँ सारा and अली, ठीक है, वो तो आप यूज कर रहे हो in order to mention two people. ठीक है, दैट इज दी एंड. उसके साथ आप कॉमा नहीं यूज करते. अब यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, वी आर मेंशनिंग टू places here. That is the reason why you are putting an and in between them. इसमें आपको कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है. आप कॉमा तब यूज करते हो and के साथ अगर आपके पास दो क्लॉजेस हैं, ठीक है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हो ना, तो आप फैन बॉयज से जोड़ते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हो, आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बनता है. उस टाइम में आप जो फैन बॉयज लगा रहे हो, जिसमें एंड भी आता है, उसके पीछे कॉमा ऐड कर सकते हो. दिस इज ग्रामेटिकली राइट, यू कैन डू दैट. वहां पे कॉमा ऐड करना इज ओके.
दैट इज ऑल राइट, दैट इज अ रूल। ठीक है, यहाँ पे जब मैं कहूँ सारा एंड अली, तो फिर मैं सारा के पीछे कॉमा डाल के एंड अली नहीं लिखूंगी। यहाँ पे इस तरीके से यूर मेंशनिंग द नेम ऑफ टू प्लेसेस, ब्रिटेन एंड फ्रांस, उसमें आपको कॉमा ऐड करके एंड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एंड के पीछे कॉमा तब यूज करते हो जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हो, ठीक है, और आप फैन बॉयज से जोड़ रहे हो, तो तब आप कॉमा लगा सकते हो। अगर तो आप फैन बॉयज नहीं लगाना चाह रहे और कॉमा भी नहीं लगाना चाह रहे, तो आप क्या यूज कर सकते हो, सेमी कॉलन यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये इस तरीके से होता है। सो द राइट आंसर हियर इज कैपिटलाइजेशन। कॉमा यहाँ पे सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली यूज हो ही नहीं सकता कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट विद द चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। गो देन, कॉमा, सेड का एस कैपिटल है, सेड द एंड डांस विंटर अवे। यहाँ पे जब आप बीच में से आप इस तरीके से मेंशन कर रहे होते हो कि किसी का जो सेंटेंस है उसको आप बीच में से ब्रेक करके ये मेंशन करते हो कि ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा ये बात कह रहा था, ठीक है, उसमें जब आप वो सेंटेंस कंटिन्यू करते हो तो आप कैपिटलाइज नहीं करते। यहाँ पे एंड का ए कैपिटल नहीं होना चाहिए था ग्रामेटिकली। ठीक है, बीटा देखो, गो देन, अब सेट का ऐसा आपने फिर कैपिटल कर दिया, एंड को आपने कोटेशन मार्क से भी बाहर निकाल दिया। दैट इज ऑल्सो सो रॉन्ग। बीटा में देखो एंड शुड बी इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, यहाँ पे आपने उसको कोटेशन मार्क से बाहर निकाल दिया, गलत है। ठीक है, गो देन, कॉमा, आपने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स ओपन किए, बंद कर दिए, सेट द एंड, कॉमा फिर लगाया, दैट इज द राइट वे हाउ यू डू दैट। फिर आपने कोटेशन मार्क्स खोले एंड डांस विंटर अवे, फुल स्टॉप के बाद कोटेशन मार्क्स बंद कर दिया आपने। दिस इज द राइट वे टू डू दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सेट का एस भी आपके पास कैपिटल है, एंड के बाद भी कॉमा लग रहा है, देन के बाद भी कॉमा लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट वन। डेल्टा में देखो, गो देन के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया, सेट द एंड, कॉमा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड द बुक। तो इसमें आप देखो, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप की क्लॉज है। आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, दिस इज बेसिकली योर नाउन क्लॉज। ठीक है, डेल्टा इज द राइट आंसर। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। आई मेट के बाद कॉमा लगाना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, मेट के बाद कॉमा नहीं लगेगा। आई मेट यंग टू ब्यूटीफुल ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट, यंग टू के बीच में आपने कॉमा नहीं लगाया, लेकिन आपने मेट के बाद कॉमा लगा दिया, दिस इज एरर। ठीक है, आई मेट टू ब्यूटीफुल कॉमा यंग कॉमा ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट, दिस इज राइट। आई मेट टू के बाद कॉमा यूज कर दिया आपने, ब्रिटिश के बाद भी कर दिया, यंग के बाद भी कर लिया, एंड ब्यूटीफुल के बाद भी कर दिया। सो मेट टू के बाद नहीं होना चाहिए था, आई मेट टू ब्यूटीफुल कॉमा होता फिर सही था। डेल्टा देखो, आई मेट टू यंग कॉमा ब्यूटीफुल ब्रिटिश, अब अपने ब्यूटीफुल और ब्रिटिश के बीच में कॉमा यूज नहीं किया, गर्ल्स के बाद कॉमा यूज कर लिया, दिस इज द मिस्टेक हियर। नेक्स्ट देखो, ही सर्कल्ड डैश whole car on his ship and on dash island he encountered dash fires giant. ठीक है, so he circled the whole world on his ship and on an island he encountered a fire giant. ठीक है, so आपके पास the and is basically going to be the right order for the use of articles in this particular sentence. I suggest that you should visit a doctor. देखो, suggestion जब आप दे रहे हो तो आप must use नहीं कर सकते, must is used for obligation. Let's say if I say you must follow the traffic rules, you are obliged to, ठीक है, it's like basically you are supposed to do that and there is no choice. So उसमें आप must use करते हो। और to में भी obligation जो होती है, have to भी नहीं होता, should आप use करोगे when you're suggesting, तो आप कहोगे you should, this is, you know, this is my opinion, but you can go against that as well, no problem with that, तो उसमें आप should use करते हो, there is no obligation attached with this, so आपका जो most appropriate बनता है according to the word suggest here, that is gonna be should. After midnight, the ghost will come out of the haunted attic to scare the people. This sentence is simple. अब देखो, इसमें आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से कंफ्यूज नहीं करना, कंपाउंड से तो कर ही नहीं सकते। आफ्टर मिडनाइट को अगर आप एक क्लॉज समझ भी रहे हो ना, तो आफ्टर मिडनाइट फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ क्लॉज, बिकॉज आपके क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। आफ्टर मिडनाइट में देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो वर्ब ईदर। ठीक है, सो ये तो आपके पास क्लॉज है ही नहीं। द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल, इसमें भी आपके पास क्लॉजेस दो नहीं बन सकते। द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल, ऐसे नहीं होता, ये इस तरह क्लॉजेज आपके पास नहीं बनती। सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल सेंटेंस। आफ्टर मिडनाइट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कंपाउंड तब होता जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती, और आफ्टर मिडनाइट इज क्लियरली नॉट इंडिपेंडेंट इन नेचर। अगर आप इसको डिपेंडेंट भी कंसिडर करते हो तो ये क्लॉज नहीं है। This is depending on definitely the other part of the sentence, but this is not a clause because there is no subject, there is no verb in it. So ये clause नहीं है, तो आपके पास ये complex sentence नहीं बन सकता because you do not have two clauses.
ठीक है, एक ही क्लॉज है, एक ही सेंटेंस आपके पास पूरा बन रहा है, सिंपल सेंटेंस है, देयर आर नो टू क्लॉजेस। इवन इफ यू ट्राई टू ब्रेक द सेंटेंसेस, आप आफ्टर मिडनाइट के बाद ब्रेक ले सकते हो, द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक के बाद ब्रेक ले सकते हो, टू स्केयर द पीपल। इस तरीके से 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल नन ऑफ द पोर्शंस इज बेसिकली none of the portions make 2 clauses, not even 2 clauses, at least 3 clauses तो आगे की बात है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 2 clauses भी नहीं बन रहे बिल्कुल भी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल सेंटेंस। चूज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। हैड ही बीन देयर he would see us. Had he been there he would had seen us. He would had नहीं होता, would के बाद have ही लगता है। Had he been there he would have seen us. Charlie is the right answer. Had he been there he would have seen us. Had he been there he would have seen us. अच्छा, ये Charlie delta options repeat हो गई। Delta option was clearly not similar as Charlie. So आपके पास had he been there he would have seen us is basically going to be the right answer. ठीक है। Whatever you order for dinner, it's fine with me. The underlying part is so यहाँ पे आप जो underlying part की बात करते हो, that is basically going to be the noun clause. Whatever you order for dinner, I think, is the underlying part. So that is also your noun clause. Alpha is the right answer. Fill in the correct articles. Female loin is dash. Female loin is called dash loinus. The female loin is called a loinus. ठीक है। अब आपने यहाँ पे द क्यों यूज किया? जब आप बात कर रहे हो ना, we're not talking about just a random loin, ठीक है, we're making like a general statement about all the female loins, ठीक है। सो आप जब यहाँ पे बेसिकली इसको ऐसे समझो कि यूर टीचिंग अ फैक्ट। जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हो ना, जब आप कैटेगराइज कर रहे हो, टाइप की बात कर रहे हो, तो आप द लगाते हो उसके साथ, ठीक है। जिस तरह मैं कहूँ द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, द चीटा इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ठीक है, द फीमेल लॉइन इज अ लॉइनस। सो सिंस आप एक फैक्ट मेंशन कर रहे हो तो आप उसके साथ द यूज करते हो, ठीक है, आ यूज नहीं होगा यहाँ पे। सो आपके पास ये बनेगा द फीमेल लॉइन इज कॉल्ड ए लॉइनस, ठीक है। सिंस यू वर मेंशनिंग अ फैक्ट तो आप पीछे द यूज करोगे, एंड आगे कोई नॉर्मल बात हो रही है तो आप आगे यूज करोगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशंस। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, कॉमा हमजा कॉलन अ वॉच। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, आपने फिर यूज कर दिया एक सेमी कॉलन, हमजा अ वॉच। अब देखो आप यहाँ पे सेमी कॉलन से इन दो क्लॉजेस को क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, कॉमा हमजा सेमीकोलन अ वॉच। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन सेमीकोलन हमजा कॉमा अ वॉच। अब देखो हमजा के बाद कॉमा लगाने की कोई है नहीं रीजन, यू डोंट हैव एनी रीजन। बाकी तो आपके पास आपने सीधा एलिमिनेट कर दिया, बहुत इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन आप डेल्टा और बीटा में कंफ्यूज कर सकते हो पोटेंशियली। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हमजा के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। बीटा हियर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर कि अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन सेमीकोलन लगा दिया, हमजा अ वॉच। हमजा के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ कॉमा, कि आपने कब कॉमा लगाना है, कब कहाँ कॉमा नहीं लगाना। इनफॉर्मली हम जगह जगह कॉमा यूज कर लेते हैं, जहाँ करना होता है कभी कभी वहां नहीं करते, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक स्ट्रिक्टली अबाउट द एग्जामिनेशन कंडीशन एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो यू नीड टू मेमोराइज वेयर टू यूज अ कॉमा एंड वेयर नॉट टू, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमा यूज नहीं होगा, आपके पास बीटा इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Arthropoda are 54% of all animals due to which features? So हम किन features की वजह से arthropoda को 54% of all animals कह रहे हैं? They are basically articulation of joints and diversity. ठीक है, so the right answer here is diversity and articulation of joint. Alpha is the right answer, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं arthropods are basically 54% of all the animals, क्योंकि आपके पास जो इनकी joints से they are articulated, ठीक है, and they also have diversity among their habitat. Articulation, basically, let me clear. यहाँ पे जो option है, that is articulation of exoskeleton. The correct option, I'm going to rephrase it. It is diversity and articulation of exoskeleton. ठीक है, this is the correct option. यहाँ पे it is like rephrased in a different way. So the right one, basically, it is stated as diversity and articulation of exoskeleton. क्योंकि जब हम arthropods की बात करते हैं तो उनकी evolutionary success की वजह से, उनकी evolutionary success basically इस वजह से because they have exoskeleton जो chitin का बना हुआ होता है, ठीक है। इसे protection भी provide करे, prevent करे water loss भी, muscle attachment भी allow करे, ठीक है। इसकी joint appendages भी इसी वजह से, efficient movement भी इसी वजह से। So आपके पास this is the adaptability and structural efficiency, जिसकी वजह से they are like so much diverse, ठीक है। This leads to the diversity they have. So the right answer here is alpha.
The process in which unwanted structures are engulfed by a cell is called. तो unwanted structure को cell engulf करे, that is autophagy. Autolysis में ये होता है कि आप cell death commit करवा रहे हो, ठीक है. So that is basically इसकी वजह से आप इसे suicidal bags कहते हो. लेकिन जब आप सिर्फ एक structure को unwanted या किसी organelle को engulf करवा रहे हो, that is autophagy, not autolysis. ठीक है. Which phylum developed first true coelom? So first true coelom किसका develop हुआ था? Annelida is the right answer. Part of brain that controls coordination and stores memory for behavior is called. So जब हम coordination की बात करते हैं, आपके body equilibrium है, coordination है, ये सारा maintain करना है, body की किस part का काम होता है, that is basically the function of cerebellum. ठीक है. Yes, exoskeleton वाला ही सही आंसर है यहाँ पे पीछे. We were on question 19, yes. ये exoskeleton वाला ही सही आंसर है. I rephrased it for you guys. The option here was diversity and articulation of exoskeleton. ठीक है. So basically technically it is the exoskeleton वाला option ही that is the right one. यहाँ पे इसको थोड़ा phrase दूसरे तरीके से किया गया है, so I rephrased it. कि जो actual option था वहाँ पे exam में mentioned, that was basically diversity and articulation of exoskeleton, and that is exactly the right one. ठीक है. Okay, यहाँ पे cerebellum is the right answer. Next is what is present in alveoli. तो alveoli की walls के अंदर collagen present होता है. Charlie is the right answer. Gene linkage is confirmed by. जब हम gene linkage की confirmation की बात करते हैं, test cross से आप gene linkage को confirm कर सकते हो. Alpha is the right answer. Gene linkage rejects. जब हम gene linkage की बात करें, linkage genes आपके पास साथ ही inherit होती हैं. Independent assortment उनकी नहीं होती as per the Mendel's concept. So आपके पास they reject the law of independent assortment that was proposed by Mendel. Which of the following invertebrate has great capacity of intelligence and has large brain? So octopus here is the right answer, Charlie. It has like a great capacity of intelligence and it has a large brain as well. Which of the following is an asymptomatic carrier feature that disappears after a few months? जब हम asymptomatic carrier की बात करते हैं, अभी full blown AIDS की बात नहीं कर रहे, we are talking about asymptomatic carrier. उसमें आपके पास कौन सी ऐसी feature है जो after a few months disappear हो जाती है? That is the lymphatic nodes की swelling. ठीक है. It does come back again after like in the next phase, but अभी यहाँ पे after some time, after some months, ये disappear हो जाती है. Right answer is alpha. The size of the porcelain filter, that is 100 to 1000 nanometer, beta is the right answer. What is the end product of glycolysis? तो जब हम glycolysis की बात करते हैं तो glycolysis का end product आपके पास क्या बनता है? Pyruvate बनता है. ठीक है. Pyruvate and pyruvic acid both simultaneously were not the options. So one of them was the option that is going to be the correct one. ठीक है. Next is which is present in the alveolar walls. Collagen आपके पास alveoli की walls में present होता है. Which virus contains double-stranded DNA? Double-stranded DNA किस virus के अंदर होता है? Sorry, it's double-stranded RNA. ठीक है. जब हम double-stranded DNA की बात करते हैं तो आपके पास है herpes virus, you have adenovirus and you have pox virus. ठीक है. ये आपके पास 3 viruses हैं जिनके पास double-stranded DNA होता है. जब हम single-stranded DNA की बात करते हैं तो आपके पास mild rash होता है वायरस. ठीक है. जो mild rashes cause करता है. फिर जब हम बात करते हैं आगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तो आपके पास होता है रियो वायरस जो आपके पास डायरिया कॉज कर रहा है. ठीक है. सो डायरिया वायरस जिसको आप रियो वायरस कहते हैं, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू. और जब आप रुबेला की बात करते हो दैट इज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड में आपके पास 3 टाइप्स है ना कि या तो वो सर्व करे एज द मैसेंजर आरएनए या तो वो आपके पास टेम्पलेट के तौर पे सर्व करे फॉर द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस या तो वो टेम्पलेट के तौर पे सर्व करें फॉर द डीएनए सिंथेसिस. ठीक है. सो आपके पास रुबेला इज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डायरिया इज बेसिकली योर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है. रियो वायरस ये करवा रहा होता है. विच आयंस आर इन्वॉल्व इन द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन? सो आपके पास सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम है. सोडियम पोटेशियम आपको पता है वैसे भी नर्व इंपल्स में इतना इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. कैल्शियम जब आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर की मूवमेंट हो रही होती है तो तब कैल्शियम की भी मूवमेंट उसके साथ ही हो रही होती है. Function of which organ will be affected in the case of impairment of smooth muscle? तो अगर smooth muscle की impairment की हम बात करें, heart के अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स नहीं होते. जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन बेसिकली डिपेंड कर रही होती है ऑन द प्रेशर. ठीक है. आपके पास प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, प्रेशर कहाँ कम हो रहा है, एयर इनसाइड आ रही है, एयर आउटसाइड जा रही है. एंड आपके पास प्रेशर का मैकेनिज्म इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है इन योर थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर. दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एज वेल एज योर इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. सो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपके पास जो एरिया होता है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा जिसकी वजह से आउटसाइड एयर इनसाइड या आउटसाइड जाएगी जिसकी वजह से लंग्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा.
ठीक है. सो दैट इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो वो आपके पास बनता है स्टमक, क्योंकि जब हम लंग्स की बात करें देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर आल्सो इन्वॉल्वड, लेकिन जब हम स्टमक की बात करें तो वी आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट द स्मूथ मसल्स, द मसल्स दैट वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर, दैट आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ आवर inner organs. So Charlie is the right answer. और जब हम टंग की बात करते हैं, that is not a smooth muscle, that is skeletal, because you do have a control over it. Bacteria which grow in oxygen and also in the absence of oxygen environment, that are facultative anaerobes. ठीक है, alpha is the right answer. Which of the following gland would be responsible for the field ovulation? Ovulation field हो गई है, कौन सा gland responsible है? Adrenal gland has nothing to do with ovulation. Ovulation के लिए आपके पास हार्मोन होता है luteinizing hormone, that is a gonadotrophic hormone, and that is coming from the anterior lobe of your pituitary gland. So your pituitary gland is involved in फील्ड ओव्यूलेशन. एड्रिनल ग्लैंड का कोई काम नहीं है, थाइमस का भी नहीं है, और प्लेसेंटा का भी कोई काम नहीं है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड अल्फा इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस. What is the function of photosystem 2 in the photophosphorylation? जब हम photosystem 2 की बात करते हैं, उसका फंक्शन क्या है? सो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज द फंक्शन. हम ऑक्सीडेशन की फोटोलिसिस की बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है. सो दैट इज बेसिकली वाटर आपके पास ब्रेक डाउन करेगा, इट इज गोना लूज ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, और आपके पास प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, जो कि आपके पास रिलीज हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट, जो हम इनहेल कर रहे होते हैं. सो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बेसिकली बीटा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. What is the final electron acceptor in electron transport chain? So electron transport chain में आ गया ऑक्सीजन का और प्रोटॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो फाइनल एक्सेप्टर होता है दैट इज ऑक्सीजन. एच जोन कंटेन्स, जब हम एच जोन की बात करते हैं दैट इज बेसिकली थिक फिलामेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो थिक फिलामेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी में सिर्फ थिक फिलामेंट ही होगा, और थिक फिलामेंट आपके पास होता कौन से? मायोसिन. सो मायोसिन सिर्फ आपके पास एच जोन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब आपके पास हम पूरे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो उस टाइम ये एच जोन क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम. which of the pairs show correct homology? तो जब हम homologous organs या homology की बात करते हैं, तो आपके पास the right answer is going to be forelimbs of birds and fins of whales. ठीक है, यानी हम कहते हैं कि इनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन सेम है, आपके पास दे माइट हैव कॉमन इंसेस्टर्स, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी, फंक्शन माइट बी डिफरेंट. ठीक है, और yes, that is the right answer, that is beta. Identify the mismatched pair. जब हम mismatched pair की बात करें, enterokinase is related to lipase. enterokinase आपके पास क्या कर रहा होता है? जब हम बात करते हैं enterokinase, ये आपके पास एक्टिवेट करवा रहा होता है ट्रिप्सिनोजेन को, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन ने आगे क्या करना होता है? um, what is the function of trypsin? Trypsin is a hormone, right? Talking about the function of trypsin, you guys can write in the chat box though. I'm asking about the function of trypsin. अच्छा, सॉरी, इट्स लाइपेज. ठीक है, सो एंटीरोकाइनेज और लाइपेज की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द रिलेशन? उसने कहा है आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर. वी हैव एंटीरोकाइनेज एंड लाइपेज. एमल्सिफिकेशन, आपके पास एमल्सिफिकेशन से फैट ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. काइलोमैक्रोन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस कोलेस्ट्रॉल, या दैट्स राइट एज वेल. एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन का आपस में रिलेशन नहीं है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट acetylcholine and gastrin, how are you going to relate both of these terminologies? I'm going to wait for like a minute to or before answering the question, but I want you guys to think about it. How are these basically related? क्योंकि उसने कहा है कि आपने mismatch find करना है, so you need to understand the relation between the others. Chylomicrons, carbs plus cholesterol, that is done, that you know. ठीक है, जब हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की, बनो इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपके पास इसका काम है इन द रिलीज ऑफ अ हार्मोन.
एंटीरोकाइनेज की अगर हम बात करें तो वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, नॉट लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम है जो फैट को ब्रेक डाउन करेगा, एंड इट इज नॉट एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज। दिस इज द मिसमैच। ठीक है, काइलोमाइट्रोन्स कार्ब्स प्लस कोलेस्ट्रॉल, दिस इज राइट। एमल्सिफिकेशन फैट ड्रॉपलेट्स, इट्स राइट। एमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें आप लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो। ठीक है, एंड जब आप एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन की बात करते हो तो एसिटाइल कोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और ये आपके पास गैस्ट्रिन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, gastrin is a hormone. So this is also the correct match. The right answer here is going to be enterokinase and lipase. There is no relation between enterokinase and lipase. Enterokinase trypsin को activate करता है. Trypsin is a protein digesting enzyme. It has nothing to do with lipid digestion that lipase has a relation with, right? So the right answer here is going to be, it's lipid and cholesterol. Chylomicrons are not carbs and cholesterol. Acetylcholine is involved. Okay, when we talk about chylomicrons, दे आर बेसिकली, आप कहते हो ना कि जो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बेसिकली उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, सो दे प्राइमरली कैरी, या दे डू कैरी लिपिड्स and not carbs. So this is sort of also a mismatch. So yes, that does make sense. That is right. यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे भी एरर है। ठीक है, एंटीरोकाइनेज और लाइपेज का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सो यस बोथ ऑफ देम आर मिसमैच्ड। ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक। Next is a woman cuts her hand. Which of the following causes inflammation? So inflammation cause करता है histamine. ठीक है, alpha is the right answer. There are 170 types of amino acids discovered in the cell. How many amino acids are involved in making proteins? So 20 amino acids, beta is the right answer. Which of the following are same substances present in the blood and lymph? तो वो चीजें जो ब्लड में भी प्रेजेंट होंगी और लिम्फ में भी प्रेजेंट होंगी, दैट इज बेसिकली ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. The type of T lymphocytes which do not directly attack microbes. अब ये मुझे बताओ. Fatty acid plus glycerol combined with protein or cholesterol forming chylomicrons. Yes. ठीक है. Okay, so you guys are saying the right answer is B lymphocyte. Is B lymphocyte a type of T lymphocyte? Is B, क्योंकि यहाँ पे the question clearly asks type of T lymphocytes which do not directly attack microbes. So is B lymphocyte a type of T lymphocyte? Is this true? जब हम बात करते हैं ना न्यूट्रोफिल्स की और मैक्रोफेजेस की, तो ये तो बेसिकली इनगल्फ कर लेते हैं ना बैक्टीरिया को. तो आपके पास अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स आपके पास नहीं डायरेक्टली अटैक करते माइक्रोब्स को, यस दैट इज ट्रू. एंड नेचुरल किलर सेल्स दे डू डायरेक्टली अटैक, उनका इनडायरेक्ट अटैक होता नहीं है. बट टॉकिंग अबाउट बी लिम्फोसाइट्स आर नॉट द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, सो if we skip this part of the question, we can clearly go for B lymphocytes, which do not directly attack the microbes. But given the first part, types of T lymphocytes, so B lymphocyte is not a type of T lymphocyte. It is in fact a type of a lymphocyte, but not clearly the T lymphocyte. ठीक है. एंड अगर आप नेचुरल किलर सेल की बात करो तो नेचुरल किलर सेल बेसिकली इनडायरेक्ट अटैक उसका होता नहीं है.
ठीक है, so here's some sort of ambiguity in the question, whether you're going to go with the first part or the second part, that does affect the answer you're going to choose. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो इन द वेसल. उसने कहा लीस्ट अफेक्ट्स, यानी उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, उसका आपके पास इफेक्ट आएगा कि आपका ब्लड वेसल्स में खून किस तरीके से फ्लो कर रहा है. हार्ट बीट की वजह से भी आपके पास जो प्रेशर है वो चेंज आएगा. आपके पास आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि आपके पास हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड को, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो बोर साइज की हम बात करते हैं, वो आपके पास आर्टरी और वेन का जब हम कंपेयर करते हैं उससे आपके पास प्रेशर भी चेंज होता है in the arteries and veins respectively. So ये तीनों का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, ये आपको अफेक्ट करते हैं. उसने कहा लीस्ट सबसे कम कौन अफेक्ट करता है, तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री फैक्टर्स. एक्टिव एंजाइम पेप्सिन आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिशनल पॉलीपेप्टाइड इज एग्जांपल ऑफ. ये बताओ. After we did say natural killer cells are the type, but it's yeah, natural killer cells do directly attack the microbes. So यहाँ पे the question is actually about which of the following do not directly attack. So yes, the question is ambiguous. We need like more clarification whether we need to skip the initial part or the latter part in order to get the right answer. So for this, the right answer is regulatory enzyme. यस, देखो उसने जब आप एपो एंजाइम और होलो एंजाइम की बात करते हो ना, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. इस तरह के जो एंजाइम होते हैं आप उन्हें कहते हो जाइमोजेंस. ठीक है, जिस तरह आप पेप्सिन की बात करें, पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनाया, आपने एक पार्ट रिमूव किया इन ऑर्डर टू मेक इट एक्टिव, दीज आर नोन एज जाइमोजेंस. ठीक है. एपो एंजाइम वो होता है जिसमें से आपने कोफैक्टर रिमूव किया हुआ है. होलो एंजाइम वो है कि आपने एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर अटैच किया हुआ है. ठीक है. रेगुलेटरी एंजाइम्स हम इसको क्यों कह सकते हैं? जब हम रेगुलेटरी एंजाइम की बात करते हैं तो वो एंजाइम है हुज एक्टिविटीज कंट्रोल्ड. ठीक है, चाहे आप एलोस्टेरिक रेगुलेशन से करो, चाहे आप किसी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से करो, या फिर प्रिकर्सर एक्टिव, कुछ भी कर सकते हो, पर आप उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो. नॉन रेगुलेटरी वो होते हैं जिसकी जो फंक्शन करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन, जिसमें आप लॉक इन की मॉडल जिस तरह आपने पढ़ा था. यहाँ पे वी आर रेगुलेटिंग द एक्शन, हम एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं. सो द राइट आंसर हियर इज गोइंग टू बी रेगुलेटरी एंजाइम. होलो एंजाइम नहीं होगा बच्चों. होलो एंजाइम इज एसोसिएटेड विद कोफैक्टर एंड नॉट द रिमूवल और एडिशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. मैं समझ रही हूँ कि आप लोग एक्टिव एंजाइम से होलो एंजाइम आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन एक्टिव होलो एंजाइम एक्टिव इस वजह से होता है क्योंकि उसके साथ कोफैक्टर अटैच होते हैं, नॉट बिकॉज यू आर रिमूविंग सम सॉर्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम इट. ठीक है. सो यहाँ पे I can prove it can be. Apo enzyme is not associated with. Apo enzyme, first of all, is not active. Let me clear this. Okay, we guys can do the discussion here. So कोई question हो तो you guys can write in the chat box. देखो एपो एंजाइम एक्टिव होता नहीं है. एपो एंजाइम वो एंजाइम है कि आपने प्रोटीन पार्ट में से उसका नॉन प्रोटीन पार्ट जो उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कोफैक्टर था, वो आपने निकाल दिया. जब आप कोफैक्टर निकाल देते हो एंजाइम वही इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपो एंजाइम इज नॉट एक्टिव इन नेचर क्योंकि आपने उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं किया. वो उसकी जरूरत थी. इट वाज नॉट द टाइप ऑफ एंजाइम जिसको जरूरत नहीं था कोफैक्टर, उसको चाहिए था, आपने उसको दिया नहीं, वो एक्टिव नहीं है. सो एक्टिव एंजाइम तो हो ही नहीं सकता है एपो एंजाइम. अगर आप होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम करके क्लिक कर भी देते हो ना, चूज कर भी देते हो, तो होलो एंजाइम एक्टिव होता है, लेकिन उसमें आप एडिशन कर रहे होते हो कोफैक्टर की. द नॉन प्रोटीन पार्ट इज एडेड अलोंग विद द प्रोटीन पार्ट. इसमें कोई एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन का रिमूवल नहीं हो रहा होता. ठीक है. सो अगर हम बात कर रहे हैं कि वी आर बेसिकली कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, आप ऐसे एंजाइम की बात करें जिसकी आप एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हो कि अगर तो मैंने वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन लगा दिया तो वो काम नहीं कर रहा, वो पेप्सिनोजेन है, इट इज इनएक्टिव इन नेचर. और अगर मैंने उसको रिमूव कर दिया तो वो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बन गया, दैट इज एक्टिव इन नेचर. ठीक है. सो यू आर बेसिकली इनडायरेक्टली सेइंग कि हम कंट्रोल करें एंजाइम की एक्टिविटी. सो अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल करने की बात करते हो तो वो रेगुलेटरी एंजाइम होता है. चार्ली इज द राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. ठीक है, अमंग दी अदर ऑप्शंस, क्योंकि एपो और होलो का तो ताल्लुक कोफैक्टर के साथ है. इनको तो रिमूव कर दो, इनको तो पहले एलिमिनेट करो. यू वर सपोज टू चूज बिटवीन रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी. ठीक है. और उसमें आपने देखना है कि आप किसको चेंज कर सकते हो. ठीक है. All enzymes don't require cofactor to work like this one in terms of pepsin. It's an apo holo. नहीं 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 नहीं, देखो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट रॉन्ग. जब हम बात करते हैं ना, अच्छा लेट मी क्लियर दिस. जब हम बात करते हैं ना एपो एंजाइम या होलो एंजाइम की, तो इन दोनों को कोफैक्टर चाहिए होता है. एक को आपने दिया नहीं है अभी तो वो इनएक्टिव है, वो एपो होता है. एक को आपने दे दिया है, वो एक्टिव है, वो होलो होता है.
ठीक है। सो दोनों को ये हम कुछ एंजाइम्स तो ऐसे होते हैं ना जिनको कोफैक्टर चाहिए ही नहीं होता, वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते, वो तो है अलग ना, उनको कोफैक्टर चाहिए ही नहीं, दे डू नॉट नीड द नॉन प्रोटीन पार्ट। हम एपो और होलो तब कहते हैं जब चाहिए, हमने एक को नहीं दिया तो वो इनएक्टिव है, एक को दे दिया तो वो एक्टिव है, ये हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। जो इस तरह के एंजाइम्स होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू द कैटेगरी, जो इस तरह के एंजाइम्स होते हैं ना कि आपने एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव की, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाया, उन्हें जाइमोजेंस कहते हैं। वो एपो या होलो की कैटेगरी में नहीं आती, दे हैव देयर ओन कैटेगरी जिसको आप जाइमोजेंस कहते हो। ठीक है, उनको कहा ही जाइमोजेंस जाता है। तभी आपके पास जो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन रिलीज करने वाला सेल होता है उसे भी जाइमोजेनिक सेल कहते हो, इसी वजह से कहते हो क्योंकि पेप्सिनोजन इज अ जाइमोजन। ठीक है, तो उन एंजाइम्स को आप एपो या होलो में कैटेगराइज नहीं करते, उनकी अपनी कैटेगरी, उन्हें जाइमोजेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? व्हाई नॉट एपो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रेगुलेटरी एंजाइम फॉलो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यस रेगुलेटरी एंजाइम्स डू फॉलो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, बट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम वी कैन अफेक्ट, वी कैन कंट्रोल। जब हम रेगुलेटरी एंजाइम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिसकी एक्टिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे हम सिंस इसकी एक्टिविटी कंट्रोल कर पा रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। But the left unactivated enzyme is apo without any doubt. Yes, the inactivated enzyme is apoenzyme. लेकिन यहाँ पे we are talking about the active enzyme. ठीक है? If the enzyme requires change of pH etc. to be activated, that is called the regulatory enzyme. अगर जनरली अगर हम किसी उसकी बात करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम पेप्सिनोजन की बात करते हैं, दिस इज मेंशन्ड इन योर बुक, पेप्सिनोजन वाली एग्जांपल एंजाइम्स वाले चैप्टर में, दीज आर कॉल्ड जाइमोजेंस, इनकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जब आप सिंस आपको जाइमोजन ऑप्शन दिया नहीं था तो यू हैव टू चूज बिटवीन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो आपने उसमें रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी में कंपैरिजन करके चूज करना था कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन कौन सा बनता है। रेगुलेटरी में आप कंट्रोल कर सकते हो, नॉन रेगुलेटरी में देयर इज नो कंट्रोलिंग फ्रॉम योर एंड। ठीक है, वो आपके पास लॉक इन की मॉडल फॉलो कर रहा है, सो रेगुलेटरी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। Yes, the part removed from the activated pepsin, it is the regulatory enzyme. Yes, regulatory enzyme is the right answer. ठीक है, एपो एंजाइम इस वजह से नहीं हो सकता, वो पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं लगा हुआ होता, वो इनएक्टिव होता है। Clear? Still, if there is any sort of confusion, you guys can write in the chat box and we can continue with the discussion. ठीक है, एक्टिव साइट फॉर्म्स द बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक भी स्ट्रॉन्ग होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन रहा होता, हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एक्टिवेटर ऑफ हेक्सोकाइनेज, ये मैग्नीशियम आयन होता है। सुक्रोज किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। द मीट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? उसको आप बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हो मीट्रल को, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो बाइकस्पिड होता है वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, और जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट साइड पे होता है, और बाइकस्पिड को मीट्रल वाल्व भी कहते हैं। Cofactors can be polypeptide. We are not discussing about the nature of cofactor. जब हम होलो एंजाइम की बात करते हैं ना, जब हम होलो एंजाइम की बात करते हैं तो आप कोफैक्टर ऐड कर रहे होते हो। द स्टेटमेंट सेज द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड। ठीक है, सो होलो नहीं बन सकता। जब आप एपो एंजाइम की बात करते हो तो आप एक चीज रिमूव कर रहे होते हो, राइट? जिस तरह एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट, बट देन द एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव, वहां पे लिखा हुआ है एक्टिव एंजाइम। ये देखो ना, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिशनल पॉलीपेप्टाइड। तो अगर आपने एक चीज रिमूव की, अगर हम इसको एपो एंजाइम ले, आप कुछ रिमूव कर रहे हो तो एपो एंजाइम बन सकता है। लेट्स से कोफैक्टर था, आपने रिमूव कर दिया, एपो एंजाइम बन गया, हाँ सही कह रहे हो, पर वो एक्टिव एंजाइम नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव हो जाता है। एपो एंजाइम इज नॉट एक्टिव, आपने उससे एक इंटीग्रल चीज रिमूव कर दी। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, यू आर सेइंग कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वही कोफैक्टर है, आपने उसको रिमूव कर दिया, एंजाइम क्या बन गया? एपो। बट एपो एंजाइम इज नॉट एक्टिव, द स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट्स एक्टिव एंजाइम, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आप जब कोफैक्टर रिमूव कर लेते हो तो एंजाइम इज नो लॉन्गर एक्टिव, उसको चाहिए प्रोटीन पार्ट को, नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए एक्टिव फंक्शनिंग के लिए, आप जब वो रिमूव कर दोगे तो वो फंक्शनल नहीं रहेगा। सो द स्टेटमेंट क्लियरली सेज एक्टिव एंजाइम। ठीक है, अगर तो नॉन एक्टिव होता तो आप कर सकते थे एपो एंजाइम, दैट डज मेक सेंस। एक्टिव एंजाइम लिखा है तो एपो एंजाइम इज नॉट एक्टिव, इट इज नॉन एक्टिव। ठीक है, आफ्टर, वो कह रहे हैं एक्टिव एंजाइम पेप्सिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्सिन से रिमूव किया ना, पेप्सिनोजन से आपने रिमूव किया ना, पेप्सिन से तो रिमूव नहीं किया। द स्टेटमेंट माइट बी एम्बिगुअस, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन में कोई फ्लॉ नहीं है, या आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन में कोई फ्लॉ है।
ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि एज पर द गिवन स्टेटमेंट, देखो कभी कभी होता है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं दे आर वियर्ड, ठीक है, बट यू हैव टू look at every single word that is used in the statement, make sense out of it and choose the most appropriate one. उसके बाद की क्या होगा उसमें राइट आंसर, दैट इज अनदर डिस्कशन, ठीक है, बट वी आर सेइंग हियर कि एज पर द गिवन क्लूज जो स्टेटमेंट में गिवन है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है दैट इज रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है, एज पर द की दैट माइट बी समथिंग एल्स, बट एज पर द गिवन क्लूज दैट आर गिवन इन द स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड कि आपके पास ये सही आंसर बनता है, ठीक है, और आप जो रिमूव करते हो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन वो पेप्सिनोजिन से करते हो और पेप्सिन बनता है, ठीक है। आई जस्ट वांट कि आप लोगों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो जाए, दैट इज व्हाई आई एम एनकरेजिंग द डिस्कशन हियर, ठीक है। सो जस्ट इन केस देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन स्टिल इन द ब्रेन, हम डिस्कस कर लें सो दैट इट यू नो वो क्लियर हो जाए एंड आप लोग आगे मिस्टेक ना करो, ठीक है, दैट इज द इंटायर रीजन फॉर द डिस्कशन, ठीक है। So yeah, no problem. I highly encourage and appreciate the discussion from your end. Definitely, you guys are students. You have curious minds, and I like the fact that you guys are thinking about these questions. So yeah, that is a very good thing. No problem with the discussion. Okay. Okay. So if two or more flagella are present at one end of the bacteria, तो आपके पास इसमें अल्फा राइट आंसर है। एम्फी याद रखो, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फीबियन पढ़ा ना, बोथ लैंड एंड वाटर, तो एम्फी आपके पास दोनों साइड्स पे होंगे, और आपके पास यहाँ पे जब हम बात करें कि एक ही साइड पे दो फ्लैजेला हैं, सो अल्फा इज गोइंग टू बी द Lophotrichus is basically going to be the right answer. Which of the following statement tell us that the special creation differs from natural selection? Special creation के according हम कहते हैं कि जो special creation का idea it relies on inspiration and religious beliefs. ठीक है, आपके पास उसमें हम एवोल्यूशन की बात नहीं करें, न्यूमरल चेंजेस के बाद या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ ऐसी बातें नहीं करें, एडाप्टेशन भी आपके पास स्पेशल क्रिएशन की बात नहीं है, एवोल्यूशन वाली बात कर रहे होते हो, एंड स्पेशल क्रिएशन इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल एवोल्यूशन, तो ऐसा नहीं है, स्पेशल क्रिएशन कहती है कि आपके पास जो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा ही था सिंस द बिगिनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे बीटा इज द राइट आंसर। रिडक्शन इन जीन्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, तो आपके पास नेचुरल डिजास्टर की वजह से जीन्स के अंदर रिडक्शन आ रहा है, दैट इज योर बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। अल्फा इज द राइट आंसर। डैश लीड्स टू वेरिएशन इन द जीन पूल, सो जीन पूल के अंदर आपको वेरिएशन चाहिए, वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस, तो आपको जीन पूल के अंदर डिफरेंसेस चाहिए, सो हम जीन म्यूटेशन की बात करें, जेनेटिक म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। Unicellular prokaryotes are indefinite ancestors. I'm not getting the point exactly what you are trying to say. If you can please repeat that, तो मैं इसको देख लेती हूँ, ठीक है। If there is any sort of confusion, you can repeat that. Amount of SER and RER in skeletal muscles. जब हम skeletal muscle की बात करते हैं तो SER ज्यादा होता है, तभी हम इसको sarcoplasmic reticulum भी कहते हैं, ठीक है, और RER क्या होता है, कम होता है। Some of the questions options might be a little different. But I'm making sure that when it comes to the right answer, I rephrase the given statement in the form जो आपको actual exam में थी, ठीक है? Since we had to like compile the exam a little quick, maybe that's the reason, and you know, human errors are possible. So yes, but in case of any question or something you want to discuss, you guys can mention that in the chat box. ठीक है? यहाँ पे right जो है, रुको, let me tell you the statement as well. Evolution वाला जो question था, that was what distinguishes the concept of special creation from the concept of evolution. ठीक है, ये question है. The first option is life is not the product of sudden creative act. Beta is unicellular prokaryotes might be the life ancestors. ये वही वाली बात है, evolution वाली. Life is not a product of sudden creative act. ये भी evolution वाली बात है. Rely on inspiration and meditation for the life origin. That is the right answer. It relies on inspiration and religious beliefs लिखा हुआ है, इसकी जगह meditation. ठीक है. लाइफ रिजल्ट्स फ्रॉम इन्यूमरेबल चेंजेस, सो इन्यूमरेबल चेंजेस भी आपके पास एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द राइट आंसर इज स्टिल गोना बी बीटा, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज एंटीकोडॉन लूप ऑन द ट्रांसफर आरएनए, दैट इज नोन एज मिडल लूप। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय, जब हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं तो फ्लूइडिटी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आप जब हम फेडरल बोर्ड की बुक को अगर मैं यहाँ पे रेफर करूँ, सो फेडरल बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो मेम्ब्रेन आपके पास ज्यादा फ्लूइड हो जाती है, ठीक है। सो
Saturated fatty acid is definitely not going to be the right answer क्योंकि clearly unsaturated type mention की हुई है. So जब आपके पास unsaturated option नहीं है तो the most appropriate option is going to be the fatty acids. ठीक है. So delta is the right answer. Which of the following acts as activator in the digestive enzyme in the digestive system? Activator enterokinase है. ये आपके पास किसको activate करे? Enterokinase basically trypsinogen को activate करे into trypsin. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अफेक्ट द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय. रिवर्सिबल है यानी आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आप अनडू ना कर सको. ठीक है. फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद द एक्टिव साइट. कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इफ यू आर ट्राइंग टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो रिवर्सिबल ना हो. ठीक है. डिस्ट्रॉइंग द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर ये रिवर्सिबल तो ना रहा ना. तो ये भी आपके पास रिवर्सिबल नहीं है. ठीक है. इसके अलावा देखो तो फॉर्मिंग वीक लिंकेजेस, तो आप वीक लिंकेज फॉर्म कर दो, वो आप ब्रेक भी कर सकते हो क्योंकि इट इज अ वीक लिंकेज. ठीक है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज द राइट आंसर. एक्टिवेटिंग द एक्टिव साइट. सो नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनहिबिटर्स. ठीक है. सो चार्ली हियर इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लिमार्किज्म. लिमार्किज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है. सो जब हम लेमार्किज्म के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दैट डज बेसिकली इन्वॉल्व यूज एंड डिसयूज ऑफ organ. Which chronological sequence is correct among the class of vertebrates as evidence of evolution? So fish, amphibian, reptiles, and birds. Charlie is the right answer. Which of the following bacteria is used to make vaccine against tuberculosis? देखो ट्यूबरक्लोसिस कॉज क्या कर रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है. वैक्सीन में आप करते क्या हो? डेड या वीकेंड पैथोजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो. सो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो ताकि जब असल में वो डेड या वीकेंड पैथोजन आए स्ट्रॉन्ग बन के आपकी बॉडी के अंदर असल में वो आए तो उस टाइम आप की बॉडी ऑलरेडी उसको फाइट करने की केपेबल हो. ठीक है. इट इज नॉट समथिंग न्यू टू योर बॉडी, तो आपकी बॉडी उसे इजीली फाइट कर सकती है. सो वैक्सीन के अंदर भी आप क्या यूज कर रहे हो? वही जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं. ठीक है. सो द राइट आंसर इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. Next, देखो which testicular cell of man with high level of testosterone will start their endocrine activity. So जब हम endocrine activity की बात करें यानी आपके पास हार्मोन रिलीज होगा. हार्मोन कहाँ से? लेडिक सेल से रिलीज हो रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है. सो लेडिक सेल्स डेल्टा इज गोइंग टू बी द राइट आंसर क्योंकि वही आपके पास एंडोक्रीन होते हैं नेचर, वही आपके पास हार्मोन्स को रिलीज करवा रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो तो which layer of the uterus consists of the contractile muscles. जब हम मसल्स की बात करते हैं मायोमीट्रियम है जो कि हेल्प करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से. ठीक है. व्हाई नॉट फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स आपके पास फ्लूइडिटी नहीं कंट्रोल कर रहे होते, वो आपके पास स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहे होते. जो हम बात करते हैं ना हाइड्रोफोबिक नेचर है उसकी, आपके पास वाटर और उसके दरमियान रिडक्शन इन कॉन्टैक्ट है. सो वो आपके पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. Which of the following endocrine gland is responsible for field ovulation? That is pituitary gland. ठीक है. Find the exact function of ATP hydrolysis in the muscle contraction. So muscle contraction में ATP hydrolysis का क्या काम है? That is the breaking of cross bridges. The reason behind the slow healing of cartilage is the absence of blood vessels. नहीं होती blood vessels वहाँ पे, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड जाता है, इस वजह से हीलिंग स्लो है. विच सेल इज इंपॉर्टेंट टू कॉज बोन रीअब्जॉर्प्शन? तो जब हम बोन रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट बीटा इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूसेस इन द सेल? दैट इज क्लोरोप्लास्ट क्योंकि उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है. आपके पास ये सेमी ऑटोनॉमस है, अपना डीएनए, अपना आरएनए है, अपना राइबोसोम है. ठीक है. उसकी अपनी जेनेटिक मशीनरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोट का 50 and 30 सब यूनिट होता है ऑफ राइबोसोम्स. दे आर अ टोटल ऑफ they make a total of 70s ribosome and eukaryote 80s होता है with the subunits 60 and 40s respectively. What is the correct direction of action potential along the neuron? तो एक्सॉन से वो पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल पे जाता है. अल्फा is the right answer. Concentration of potassium and sodium inside and outside the neuron membrane is given as. जो पोटेशियम है वो 30 times ज्यादा होता है. पोटेशियम is 30 times अंदर ज्यादा होता है पोटेशियम या बाहर ज्यादा होता है? जब हम बात करते हैं पोटेशियम की और सोडियम की तो आपके पास इनसाइड एंड आउटसाइड कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ. तब तक लेट मी गो थ्रू द
options as well. टेस्टोस्टेरोन एमसीक्यू में क्या इशू है भैया? एमसीक्यू ठीक है, let me reread it. Okay, let me double check the statement as well. Just give me 1 minute. Just a minute, I'll need to find the question. Yes. Which testicular cells in the human male with high testosterone level will start the endocrine activity? It's like the same. स्टेटमेंट तो एग्जैक्ट सेम है ना, एंडोक्राइन की स्पेलिंग में थोड़ा सा मसला हुआ है. ठीक है, द स्टेटमेंट इज which testicular cell in the human male with high testosterone level will start the endocrine activity? So Leydig cells, Sertoli cells up. What is your like suggestion? What one should be the right answer? If we talk about Sertoli cells, so it is responsible for the maturation. Spermatid to sperm maturation कर रहा होता है Sertoli cell. ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल सेल वो है जिसके अंदर माइटोसिस मियोसिस मैच्योरेशन होगी टू फॉर्म द स्पर्म. ठीक है, but when the test level is high, eventually this might not be the exact. This is the NUMS one. I'm reading the NUMS statement, and it does say which testicular cells in a human male with high testosterone level will start the endocrine activity. So yes, that is exactly the statement. Okay, and the right answer is which is inhibin fertilized cells do to do its endocrine, which is inhibin secretion. Okay, but with high testosterone level, we're talking about high testosterone level as well, right? Ultimately making fertilized cells the correct one. But we are not like looking at the one part of the MCQ, right? We are talking about like the entire portion. कि आपके पास इन सब की हम बात करें, ठीक है? It's not just the one part of the statement we are talking about, right? So you can let me know how you think के इसमें आपके पास the right answer is going to be Sertoli cells. ठीक है? You can let me know, and then we can move to the next question. यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल विल स्टार्ट द एंडोक्राइन एक्टिविटी. सर्टोलाइज सेल्स की जब हम बात करते हैं, इट सपोर्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, इट डज सीक्रेट इनहिबिन, ठीक है, पर नॉट टेस्टोस्टेरोन. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की बात करें, दे आर जर्म सेल्स, दे गिव राइज टू स्पर्म्स एंड दे आर नॉट एंडोक्राइन ईदर. इंटरस्टिशियल सेल्स आपके पास, जब हम लेडिक सेल्स की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली द टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग सेल, दैट इज आल्सो एंडोक्राइन इन नेचर, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो सारा कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है. I have the paper with me right now. So just statement I am like saying verbally, that is the exact statement of the NUMS exam. Okay? So the statement exactly is which testicular cells in the human male with high testosterone level will start the endocrine activity. Alpha option is interstitial cells, B is Sertoli cells, Charlie is spermatogonial, and delta is Leydig cells. Okay, so yes, that is basically in the exam, the statement. And the right answer here is Leydig cells. Yeah. Moving to the next question, it is concentration of potassium and sodium inside and outside the neuron membrane is potassium 30 times inside होता है and sodium आपके पास 10 times outside होता है. ठीक है, a brief phrase in which neuron regains its original ionic distribution and polarity. ठीक है, so brief phase in which neuron regain its original ionic distribution, polarity, that is basically the refractory period. Delta is the right answer. Part of brain that that comprises of limbic system, we have hypothalamus, amygdala, and hippocampus. Beta, correct.
Correct sequence of four elements of the neural pathways in a simple reflex circuit. So sensory to associative, जिसे आप interneuron भी कहते हो, then comes motor and then muscle. Muscle is the effector. ठीक है, muscle is not the receptor. Receptor में आपके पास skin आ जाती है, organs आ जाते हैं. Muscles and glands are effectors, तो वो end पे आएंगे. Water is present in all living organisms as universal solvent due to its polar nature. Polar nature है इसकी. ठीक है, interstitial cells is equals to lytic cells. How can both be correct? Okay. That does make sense. Interstitial cells are basically another name for Leydig cells, so you can say both are the same things. ठीक है, जब हम बात करते हैं विद हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, आपके पास जो लीडिक सेल्स होते हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, दे आर एक्टिवली फंक्शनिंग. So yes, they are responsible for the hormone secretion, aka the endocrine activity in the testes. ठीक है, so Leydig cells is the right one. Interstitial cells kind of refer to the same type of cell. ठीक है, so yes, that is the point. You're right. Okay. But given the most appropriate one, you can go for like the Leydig cells. That is like more um, well phrased and more clear and concise. Integral property of lipid bilayer in the cell membrane is due to the reduction of contact area between lipids and water because एक polar एक non-polar repulsion होगी. Identify the organic compound which combines with phosphatidic acid to form lecithin. So phosphatidyl होता है lecithin, तो choline के साथ ही attach होता है. Next question is a biopolymer which makes up the fungal cell wall, that is chitin. Main function of Golgi is processing and packaging of cell secretions. Main function of reverse transcriptase is RNA to DNA बनाना. Transcription होता है DNA to RNA. Reverse transcriptase में आप RNA to DNA जा रहे हो. In the exam there was this only one option जो RNA to DNA था, बाकी सब आपके पास DNA to DNA, RNA to RNA या RNA to RNA थे. ठीक है, so the only one option that is from RNA to DNA, either it was single stranded or double stranded, that doesn't matter. That one is going to be the right answer. Select the correct medium for the pepsin and lipase. तो pepsin acidic medium पे stomach में होता है, lipase basic medium होता है इसका. Which of the following pairs are correctly matched? Insulin pancreas से release हो रही होती हैं, ठीक है, and they are protein in nature. Which of the following alcohols will give a oily layer upon heating? अपॉन हीटिंग इसका मतलब जब हम ल्यूकस टेस्ट की बात करते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो अपॉन हीटिंग ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल प्राइमरी है. 2 ब्यूटेनॉल है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है और 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, इनमें से कोई भी प्राइमरी नहीं है. वी हैव सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. ठीक है, ये तीनों सेकेंडरी और टर्शियरी हैं, प्राइमरी नहीं है. फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% methanol and 52% water. Polymerization of HCHO yani formic acid and acetic HCHO, formaldehyde and acetaldehyde occurs in the presence of. So the right answer here, what do you guys say? What should be the right answer for this particular MCQ? यहाँ पे the right answer is going to be, we are talking about polymerization, right? जब हम concentrated H2SO4 की बात करें, there is a strong electrophile, यानी आपके पास it is a proton source. ठीक है, it can protonate alkene. So yes, ये आपके पास cationic polymerization को initiate कर सकता है. ठीक है, so polymerization can occur in the presence of concentrated H2SO4. Talking about dilute H2SO4, generally हम भी discuss करें, it is like too weak for the too weak. ठीक है, it is not that acidic for effective protonation. हम alkene की protonation करवा रहे हैं. ठीक है, more likely it is gonna lead to dehydration. ठीक है, but not polymerization. So the right answer here is going to be, what do you guys say? I'm gonna wait for like a minute or two before discussing the question. So do let me know what you guys think is going to be the right answer. Beta, dilute H2SO4.
I think it is basically PTB की book की line. So dilute H2SO4 is going to be the right answer. The boiling point, the boiling point of carboxylic acid are relatively high due to intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जो कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. मेटल कार्बोनेट है ना आपके पास, आपने कर दिया RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. आप मेटल ले लो, सोडियम, CO3, Na2CO3 बनेगा. आपके पास यहाँ पे बनेगा 2RC डबल बॉन्ड OONA. ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और आपके पास बनेगा H2O प्लस CO2. सो आपके पास जो गैस इवॉल्व हो रही, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. Next is which of the following compound will react with 2,2-dimethyl propanoic acid to produce ester? So propanoic acid is carboxylic acid. Carboxylic acid को अल्कोहल से रिएक्ट करवाओगे, इथेनॉल से करवाओगे, तो आपके पास एस्टर बनेगा. बाकी प्रोपेन है, इथेनोइक एसिड है और प्रोपेनोन है, इनमें से कोई भी अल्कोहल नहीं है. एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कीन है. The most abundant protein in animal kingdom, forming 25 to 35% of body protein, that is simple protein. Protein present in connective tissue of human, that is collagen. ठीक है. In human body, ferritin is used to store ferrous, यानी iron. In human body, ceruloplasmin acts as a carrier of copper. Select the group 2 element which has the highest ionic atomic radius. So group 2 की हम बात कर रहे हैं. हाँ, लाई बी, बी, बी सी नहीं, पीरियड होता है भाई मजीद का सर बड़ा. ठीक है, इसमें आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियस क्या करेगा, बढ़ेगा. ठीक है, इनकी साइज बड़ा है. सो आपके पास सबसे कम, सबसे नीचे बेरियम है, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. तो इसका एटॉमिक रेडियस भी सबसे ज्यादा होगा. 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, दे आर पोजिशनल आइसोमर. ठीक है, जो कीटोन है आपके पास, कीटोनिक ग्रुप, उसकी पोजीशन डिफर कर रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें से कौन सा शो करेगा? टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. सो द राइट आंसर हियर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी, if you guys want to discuss some question, अगर confusion है, आपको लग रहा है कि that might not be the right one, you guys can write in the chat box the question and we can discuss it. ठीक है. यहाँ पे do let me know which of the following will show optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो आपके पास जो कार्बन है वो कायरल होना चाहिए. जब हम बात करते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन डायोइक एसिड की, दैट इज मैलिक एसिड. तो मैलिक एसिड आपके पास आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड. कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक है. ठीक है. Which of the following is electrophile in sulfonation? SO3. Beta is the right answer. Acetylene reacts with hydrogen bromide to form 1,1-bromoethane. ठीक है, आपके पास मार्कोनिकोव रूल से सॉल्व होगा ये, और 1,1-bromoethane is going to be the right answer. Next is racemic mixture formed in SN1 reaction is due to the presence of empty. इसको अच्छे से समझ लो. जब हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करते हैं तो आपके पास किस, क्या चीज एम्प्टी होती है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, वो आपसे ये पूछ रहा है. राइट. सो अगर हम इसमें बात करें, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्स, क्योंकि आपके पास जो कार्बोकेटाइन है, दैट इज प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, आपके पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आपके पास जाती है, sp3 sp2 sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन जाती है. ठीक है, तभी तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है. ठीक है, आपके पास जो कार्बोकेटाइन है दैट इज प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी. सो द प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो प्लेनर शेप है, इसकी वजह से देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ लेफ्ट या राइट अटैक, जिसको आप रेसिमिक मिक्सचर कहते हो. सो द राइट आंसर हियर इज गोइंग टू बी sp2 ऑर्बिटल, डेल्टा.
आप अगर पी ऑर्बिटल की बात करो तो वो थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, लेकिन आपके पास जो sp2 ज्योमेट्री है वो आपके पास रेसिमिक आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So the right answer is delta, that is sp2 orbital. The fourth state of matter, that is plasma. लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, आर्गॉन है, सिलिकॉन है, ये आपके पास इस तरीके से जा रहा है. हाँ. नहीं. ना मांग अली से प्यारा सा कलर. ठीक है, सो आपके पास ये इस तरीके से जा रहा है. यहाँ जब हम जाएंगे तो साइज कम होगा और आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. तो उसने कहा है कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सो मैग्नीशियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे है. बाद में आगे आर्गॉन है, आपके पास सिलिकॉन है एंड फॉस्फोरस है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, सबसे कम है, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है एंड वीक मेटालिक बॉन्डिंग भी है इसमें. ठीक है, अगर आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखना चाहो, हाल ही में की रब से फरियाद, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है. साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो एलडीएफ बढ़ेंगे, क्योंकि नॉन पोलर है. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगी तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. सो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम और सीशियम. सो इसमें आपके पास द राइट आंसर इज गोइंग टू बी लिथियम, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर है और ये जब सबसे ऊपर है तो इसका साइज सबसे कम है. जब साइज कम है तो इसका पोलराइजेबिलिटी कम है, एलडीएफ कम है. जब एलडीएफ कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कम है एज कम्पेयर टू अदर. ठीक है. Molecular crystal melt below 200 degrees Celsius. How much heavier is hydrogen as compared to electron? 1837. Value of equilibrium constant for decomposition of ozone at 25 degrees Celsius. It is 10 raised power 55. A reaction in order of is first order when respect to A, third order with respect to B. तो rate equation K, concentration of A and concentration of B raised to the power 3 होगी. ठीक है. For reaction A gives you product. If concentration of A is doubled, product 4 times हो रहा है. This means we are talking about second order reaction. ठीक है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपने सेलेक्ट करना है, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम. सो अल्फा पार्टिकल टू पोलोनियम जब आप जाते हो, दैट इज बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके, एंड रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस. बीपी एमसीक्यू, कैन यू मेंशन द एमसीक्यू नंबर? आई कैन रिव्यू द एमसीक्यू. मुझे इस तरह समझ नहीं आ रहा है कौन सा वाला एमसीक्यू है. ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर मेंशन कर लो, यहाँ पे मेंशन हुआ है. मैं उसको देख लेती हूँ. ठीक है. सिलेक्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि हीट रिलीज हो रही हो. सो बर्निंग, कंबस्टन, कंबस्टन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आपने लिखना है यहाँ पे. सो यू हैव HClO2. आपके पास न्यूट्रल है, सो आप H+1 होता है. Cl का आपको नहीं पता, प्लस X कर दो. ऑक्सीजन 2 है, ये नीचे लिखा हुआ. एक ऑक्सीजन के आपके पास -2 होता है, एंड ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इज इक्वल्स टू 0 आपने कर दिया. X+1 -4 इज इक्वल्स टू 0. X इज इक्वल्स टू -3, सॉरी, आपके पास यहाँ पे आएगा X -3 इज इक्वल्स टू 0. बड़ी साइन, बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा लगता है. X इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, +3 इज द राइट आंसर, दैट इज बीटा. अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन. ओके, सॉरी, आई मेंशनड लंदन डिस्पर्जन. सॉरी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नहीं होती हैं आपके पास ग्रुप 1 में. एक्सीलेंट. लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नहीं होती, लेकिन जब हम जनरल इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, um, हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना आपके पास, व्हेन वी टॉक अबाउट एलडीएफ. आपके पास ग्रुप 1 में मेटालिक बॉन्ड होता है ना, क्योंकि आपके पास मेटल है. ठीक है.
तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक साइज पे, डेंसिटी वगैरह पे. सो यस, उसकी वजह से साइज इज द मेन फैक्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया. आई मेंशन द फर्स्ट नेम रॉन्ग, थैंक्स फॉर द करेक्शन. इट इज नॉट एलडीएफ. ठीक है, बट वी हैव मेटालिक बॉन्ड्स. Bond order, Charlie, is the right answer. Have the difference between number of bonding and anti-bonding electrons. Which of the following molecule is non-polar covalent bond? Tetrachloromethane. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर नेचर है इसकी. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास क्या है? अल्कीन का सबसे ज्यादा है, देन कम अल्काइन और फिर अल्कीन. ठीक है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपके पास. अल्केन का अल्फा में अल्केन का सबसे ज्यादा ऐसे नहीं होता, बीटा में अल्काइन का. अच्छा, बीटा चार्ली सेम रिपीट हुए में. और यहाँ पे डेल्टा में भी देखो अल्केन का ज्यादा है, तो अल्केन का सबसे ज्यादा नहीं होता. चार्ली हियर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द राइट वन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाते हैं. कार्बोकेटाइन टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. अगर आपके पास ओ एच बॉन्ड टूटता है तो आपके पास यहाँ पे ओ नेगेटिव बन जाता. ठीक है, कार्बन के साथ ओ नेगेटिव है. ठीक, सो यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. यहाँ पे देखो, आपने इसको सॉल्व करना है. सिंपल, आपने सबसे पहले इसको बैलेंस करना है. Na2SO4 प्लस H2O. इसमें सिंपल आपने करना है, यहाँ Na2 लिखा है ना तो इसके साथ 2 लगा दो. जब आपने इसके साथ 2 लगा दिया, Na2 पूरा हो गया, SO4 पूरा हो गया. आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. सो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. इसका मतलब आप यहाँ पे 2H2O कर सकते हो. 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई इक्वेशन. अब आपने देखना है, आपने यहाँ पे बात की NaCl की और उसको NaOH, सॉरी, वी हैव NaOH. और वहां पे हमने देखा वाटर. आपने पहले देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से, और फिर आपने देखना है H2SO4, और फिर आपने देखा वाटर. मोल्स देख लो यहाँ पे, आपके पास 40 ग्राम NaOH है. सो जब आप 40 ग्राम्स की बात करते हो, Na सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, और हाइड्रोजन आपके पास 1 होता है. 6 7 8 9 10, 0 1 कैरी, 1 2 3 4 40. सो आपके पास यहाँ पे 1 मोल बना NaOH का. जब आपके पास इक्वेशन देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब आपके पास 2 मोल्स थे NaOH के, 2 ऑक्सीजन बने, 2 पानी 2 वाटर बने. अब 1 मोल है तो आपके पास एक ही बनेगा. इसको x करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेशक फाइंड करो, 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे देखो H2SO4 आपके पास 49 ग्राम है, आपके पास जैसे 0.5 मोल्स. ठीक है, सो आपके पास जनरली जब आप इक्वेशन में देखते हो तो एक H2SO4 से 2 ग्राम वाटर बन रहा है, एक H2SO4 से 2 मोल वाटर बन रहा है. सो जब आपके पास यहाँ 0.5 आएगा तो 1 मोल हो जाएगा. ठीक है, नहीं सॉरी, एक सेकेंड. H2SO4 से 2 बन रहा है, 0.5 से आपके पास 49 ग्राम. सल्फर 32 होता है, +2 प्लस 6 इंटू 16 इंटू 4. एट 98 बना ना, 98 डिवाइडेड बाय 2 आपने किया तो आपके पास बन गया 49. सो आपके पास 0.5 मोल्स बन रहे. ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखना है कि जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बने, सब जब आपके पास NaOH एक बन रहा है तो वाटर भी कितने बन रहे, एक. ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज गोइंग टू बी 1 मोल, जो आपके पास अवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल होते हैं. अल्फा इज द राइट आंसर. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज कैलकुलेटेड बाय 2 into 12 plus 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, डेल्टा. व्हेन 6d इज कंप्लीट, एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 6d के बाद 5d. जब 5d कंप्लीट हो जाता है तो 6s पहले फिल हो जाता है, फिर 5d आता है, और उसके बाद 6p आएगा. सो 6p इज द राइट आंसर, दैट इज बीटा. ठीक है, बीटा यानी 6p इज द राइट आंसर. काइनेटिक एनर्जी 3RT डिवाइडेड बाय 2Na होता है. Fourth state of matter, that is plasma. Which factor does not affect the rate of evaporation, that is amount of liquid?
क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर एज कम्पेयर टू वाटर? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. डाइथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वाटर में होती है. Which factor that affects the lattice energy, charge to size ratio? Shape of crystal lattice किस पे डिपेंड करती है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे. If the velocity is doubled, kinetic energy क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv². यहाँ पे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल्स टू 1/2 m. वेलोसिटी आपने डबल कर दी, 2v का होल स्क्वायर ले लिया, 1/2 m इंटू 4v². यानी आपने लिख दिया 1/2 mv² इंटू 4. यानी काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 4. यानी 4 टाइम्स द इनिशियल होगी, यानी ये क्वाड्रुपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, चार्ली इज द राइट आंसर. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम आप इस तरह लिखते हो ना, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. जब फोर्स और टाइम का आपने प्रोडक्ट ले लिया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू. अल्फा ऑप्शन था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, बीटा था ईडी. ईडी आपके पास नॉर्मल नहीं होता, पोटेंशियल ग्रेडियंट का होता है. आई आर आपके पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है. यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर. ये ऑप्शन था एग्जैक्टली, एंड दिस वाज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इसका यूनिट होता है साइमन. मोहो कहो या ओहम इनवर्स को. बर्स्टिंग ऑफ टायर इज एडियाबैटिक, क्योंकि आपके पास हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं होता. Direction of angular velocity is found using the right hand rule. If mass of a charged particle is doubled, cyclotron frequency कितना हो जाएगी? तो cyclotron frequency होती है QB डिवाइडेड बाय 2m होल का स्क्वायर रूट होता है. सो जब आप मास को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो, यानी स्क्वायर रूट QB डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2m कर दो. यानी आपने कर दिया QB डिवाइडेड बाय 4m. ठीक है, सो यहाँ पे जब आप इसका वो ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 1/2 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो हाफ इज द राइट आंसर. 1 किलोवाट आर 3.6 मेगा जूल की इक्वल होता है बीटा. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.54 into 10 raised power -8 ohm meter. Relationship between acceleration radius and angular acceleration is given as a is equals to r x alpha. एंगल कितना होता है r और a के दरमियान? दैट इज 90 degrees. वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. Angle at which maximum range of projectile is achieved, that is 45 degrees. Induced EMF in a coil will be zero when the change of plane is perpendicular to the coil. क्योंकि cos नहीं, हम साइन की बात कर रहे हैं. साइन 0 0 के इक्वल होता है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. आपके पास यहाँ पे आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हो ना, इन अ कॉइल व्हेन प्लेस्ड एन ओमेगा ए बी साइन थीटा फॉर्मूला यूज करोगे. सो साइन थीटा में जब आप थीटा 0 लगाओगे पैरेलल के केस में, तो साइन 0 0 होता है. आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगी. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल दैट इज एट रेस्ट 0. रेस्ट पे चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगी नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की अपनी कोई फील्ड है नहीं, तो वो आपके पास फोर्सेस पे नहीं लगेगी. रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी. करंट ही देखना, तो अल्फा ऑप्शन इज वोल्टेज, वो नहीं है सही. सेमीकंडक्टर यूज्ड इन द electronics, that is silicon. Which of the following is non-conservative, that is frictional, and work done in a closed path is not equal to 0. Spectrum which is obtained due to the emission and absorption of radiation by atoms, that is line spectrum. Quantization of angular momentum is explained by Bohr. Electric field intensity finite sheet of charge है तो आपके पास सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है. जब दो शीट्स होंगी तो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा. जब एक शीट है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा. When star moves towards the earth, ये अर्थ है, ये स्टार है. जब इधर आ रहा है towards the earth, तो आपके पास वेवलेंथ कम हो रही है. तो जब वेवलेंथ कम हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है. रेड और ब्लू में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? ब्लू. सो ब्लू शिफ्ट इज द राइट आंसर. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वल होती है. ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. बाय रबिंग हैंड्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. कंडीशन the necessary condition to produce electromotive force, that is link change in the flux to to the closed coil. flux change होना चाहिए. change in flux is important. flux है, अगर maximum flux पे flux change नहीं हो रहा है, EMF induce नहीं होगी. clear day में intensity of solar energy 1.4 kilowatt per meter square है. stability of radioactive element is given by, देखो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी स्टेबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी? ठीक है, सो इट इज गिवन बाय डिके कांस्टेंट.
Which one is the right for this? Decay constant या rate of change of decay? डिके कांस्टेंट बेसिकली आपको स्टेबिलिटी बताता है कि लेमडा की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपके पास फास्टर डिके हो रहा है, लेस स्टेबल है। कम वैल्यू है तो स्लोअर डिके एंड वो मोर स्टेबल है। सो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिके कांस्टेंट। So decay constant here is the right answer. To identical waves with the same amplitude and same waves superimposed phenomena को interference कहते हैं. Electromagnetic wave that is used to kill the bacteria and insects in the food. Gamma rays. Path of charged particle in a plane perpendicular to uniform magnetic field. थीटा 90 डिग्री बनेगा तो पाथ आपके पास सर्कुलर होगा, लेस देन 90 बनेगा तो पाथ क्या होगा, हेलिकल होगा। Here we are done with the 150 questions. किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, यू गाइस कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स। किसी एमसीक्यू में कोई इशू है तो एमसीक्यू नंबर मेंशन कर दो एंड मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को। इफ नॉट देन आई विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन हियर इन अ मिनट और टू, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू गाइस आर encouraged to write that in the chat box. In case of any questions, you guys can let me know. So I think no more questions from your side. Thank you everyone for joining and see you guys in the next session, inshallah. Till then, take a good care of yourselves and I wish you all best of luck for your MD CAT exam. Take care of yourselves and Allah Hafiz.